students, how are you? I hope you will be safe and fine. Okay, today we are going to learn 1.6, the alchemy of nature. But before starting this lesson, we will complete activities of 1.5. In the previous lecture, we have completed activities till page number 35. Today we will complete and learn activities on page number 36. So please see on page number 36, activity number 8A. Make the following sentences affirmative without change of meaning. Keep in mind, without change of meaning, you have to make the sentence from affirmative, negative to affirmative. Okay. First one, A. I am not so sure now. I am not so sure now. In this sentence, you have to write opposite word of sure, unsure. Okay, so you can write like this: I am rather unsure. I am rather unsure now. Okay, this is your affirmative sentence. I am not sure, this is negative sentence, and I am rather unsure, this is affirmative sentence. Second one, negative. He will not be able to stop them. He will not be able to stop them. He will be unable to stop them. He will be unable to stop them. यहाँ हमने क्या किया, not able का अपोजिट unable लिख दिया और उसका affirmative हो गया. C, negative sentence. I don't remember. I don't remember. You can write this: I am unable to remember. I am unable to remember, or I fail to remember. इन दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस एज एन अफर्मेटिव लिख सकते हो. I am unable to remember और I fail to remember. Okay. Next sentence. I can do no more. I can do no more means I can do only much this. I can do only much this. No more opposite much this. Okay. Next sentence. Sir, do not anger her. Do not anger her. So इसका सेंटेंस आप लिख सकते हो: Sir, please refrain from angering her. Sir, please refrain. R-E-F-R-A-I-N. R-E-F-R-A-I-N. Sir, please refrain from angering her. This is affirmative sentence. And last one, I shall not want many soldiers. I shall want only few soldiers. Okay, not many. Not many means few. So I shall want only few soldiers. This is affirmative sentence. Okay. Next activity, activity B. Fill in the gaps in the table. आपको एक टेबल दिया गया है. So ये हमारे नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. अब उसके बाद जो एक्टिविटी है वो है वर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म्स की. वहां आपको फिल इन द गैप्स में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखने हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू. नाउन सक्सेस, वर्ब सक्सीड, एडजेक्टिव सक्सेसफुल एंड एडवर्ब सक्सेसफुली. सेकंड वन वर्ब इज गिवन इंस्पायर. तो इंस्पायर का नाउन होगा इंस्पिरेशन. इंस्पायर का नाउन होगा इंस्पिरेशन. ओके. इंस्पिरेशन नाउन, इंस्पायर वर्ब, उसका एडजेक्टिव है
इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल, ओके। और उसका एडजेक्टिव इंस्पिरेशनली, नहीं तो एलवाई इसको नहीं आएगा, इंस्पिरेशनली नहीं आएगा, ओनली एडवर्ब नहीं आएगा, ओनली नाउन और एडजेक्टिव आएगा। नाउन इंस्पायर, नाउन इंस्पिरेशन, वर्ब इंस्पायर, एडजेक्टिव इंस्पिरेशनल एंड नो एडवर्ब, ओके। सेकंड वन, थर्ड वन आपको दिया है एडजेक्टिव सेफ, तो उसका नाउन आएगा सेफ्टी, नाउन क्या आएगा? सेफ्टी। दूसरा वर्ब उसका नहीं है, तीसरा सेफ एडजेक्टिव दिया है और एडवर्ब उसका आएगा सेफली, सेफली इज एडवर्ब, ओके। देन फोर्थ है वर्ब हार्म, तो उसका नाउन भी सेम आएगा हार्म, हार्म इज नाउन, हार्म इज वर्ब एंड हार्मफुल, हार्मफुल क्या है? हार्मफुल एडजेक्टिव है, हार्मफुल एडजेक्टिव एंड हार्मफुली एडवर्ब, हार्मफुली एडवर्ब, ओके। उसके बाद फिफ्थ थॉट, ओके, थॉट इज नाउन गिवन, थॉट। उसके बाद वर्ब है थिंक, वर्ब क्या है? थिंक, यस, नाउन थॉट, वर्ब थिंक, एडजेक्टिव थॉटफुल, एडजेक्टिव क्या है? थॉटफुल, और एडवर्ब थॉटफुली, thoughtfully, okay. So thought, think, thoughtful and thoughtfully, okay. उसके बाद दिया है आपको एडवर्ब brightly, so brightly का नाउन आएगा brightness, brightly का नाउन आएगा brightness, वर्ब आएगा brighten, वर्ब brighten। उसके बाद जो उसका एडजेक्टिव है वो है ब्राइट, एडजेक्टिव ब्राइट एंड एडवर्ब आपको दिया है ब्राइटली, ओके। और लास्ट 7 और 8 देखते हैं। नाउन दिया है करेज, वर्ब आएगा एनकरेज और एडजेक्टिव आएगा करेजियस और एडवर्ब आएगा करेजियसली, करेज, एनकरेज, courageous and courageously। और लास्ट 8 नाउन आप एडवर्ब दिया है hastily, नाउन hast, वर्ब hasten, HASTEN, एडजेक्टिव आएगा hasty, HASTY और एडवर्ब दिया है hastily। सो hast, hasten, hasty and hastily। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया वर्ड फॉर्म्स का, ओके। तो इस तरह से पेज नंबर 36 हमारा कंप्लीट हो गया एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ 1.5 एंड ऑन पेज नंबर 37 देयर इज एक्टिविटी और देयर आर एक्टिविटीज ऑफ 1.6 द अल्केमी ऑफ नेचर। फर्स्ट एक्टिविटी इज वार्मिंग अप, ओके। सो वार्मिंग अप में क्या है? Rearrange the good qualities of each shape so that the first letter of each of the word, first letter of each of the words should make a meaningful word, join the sets and get message। तो पहला एक वर्ड लेके आपको एक मैसेज तैयार करना है, जैसे कि सेट 1 में अंडरस्टैंडिंग, एडॉप्टेबल, टॉलरेंट, नीट, एनकरेजिंग, रिसोर्सफुल, यू A, T, N, E and R। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? द वर्ड इज नेचर, मतलब नेचर जो आपको बनेगा वो उनको मिक्स करके, जैसे कि U, A, T, N, N, A, T, U, R, E, ऐसे नेचर आपका वर्ड बनेगा। सेट 2 सेल्फलेस एंड इंस्पायरिंग, सेल्फलेस का S, इंस्पायरिंग का I, तो वर्ड हो गया IS, IS, ओके। सेट 3 यूथफुल, मॉडेस्ट, यूथफुल का Y और मॉडेस्ट का M, वर्ड बन गया माय। और सेट 4
affectionate का A, compassionate का C, then empathetic का E, honest का भी E, then honest का H, R, reliable का R और trustworthy का T। तो वर्ड हो गया टीचर, TEACHER, टीचर। और पूरा सेंटेंस तैयार होगा नेचर इज माय टीचर। ओके, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या दिया है? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम डिफर फ्रॉम वन अनदर। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, अपीयरेंस, शेप। बर्ड्स के जो एस्पेक्ट्स है, फीचर्स है, वो अलग है, जैसे कि अपीयरेंस, शेप, कलर, साइज, फूड हैबिट्स, हैबिटेट और साउंड एक्सेट्रा। राइट सच स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी लैंड, लैंड के फीचर्स क्या है? जैसे कि ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, कलर, शेप, ओके, सॉइल एक्सेट्रा। अब वाटर, वाटर के क्या फीचर्स है? अब वाटर का कलर तो नहीं होता, तो वाटर का कलर भी नहीं आएगा, अपीयरेंस भी नहीं आएगा, साइज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वाटर का आप लिख सकते हो सॉल्टी, इरोजन एक्सेट्रा। ट्रीज का क्या आएगा? हाइट, शेप एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको हर एक ऑब्जेक्ट के, हर एक एस्पेक्ट के, एस्पेक्ट ऑफ नेचर के फीचर्स को लिखना है। ओके, और बाकी जो एक्टिविटी 3 है वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको तैयार करने वाली है। यू कैन मेक इट इजीली एट होम। तो पेज नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ पेज नंबर 38, यहां हमारा लेसन स्टार्ट होगा द अल्केमी ऑफ नेचर। द अल्केमी ऑफ नेचर मीन्स द मैजिकल पावर ऑफ नेचर। नेचर हैज अ मैजिकल पावर दैट चेंज एवरीथिंग। ओके, नेचर में एक मैजिकल पावर है जो हर एक चीज को चेंज कर देती है। देखिए आज नेचर में कितना सारा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? कोई करता है क्या? नहीं, नेचर हैज इटसेल्फ दैट पावर, दैट मैजिकल पावर। दैट मैजिकल पावर इज अल्केमी। Okay, so alchemy of nature, alchemy of nature means the magical power of nature. Okay, so we should realize or we must realize this magical power of nature. Okay, but when we ignore to nature, when we do not pay attention to nature, we cannot realize this magical power of nature. This lesson makes us realize that we should identify the magical power of nature, that is the alchemy of nature. Okay, first one is the quotation. Okay, see on page number 38. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So if you want to see the whole world, okay, the whole world in a grain of sand, जैसे कि एक रेती का, मिट्टी का कण होता है, वो भी नेचर है। एंड हेवन इन वाइल्ड फ्लावर, जैसे वाइल्ड फ्लावर्स है, फॉरेस्ट है, उसमें हेवन है। ओके, सो ये सब बात अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी दिस वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, द मैजेस्टिक वर्ल्ड, वी शुड हैव टू होल्ड द इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस व्हाट? इंफिनिटी मींस time that had end. So infinity in the palm of your hand, and eternity, eternity means that has no end. Infinity that has, or time that has end, and eternity that has no end. Okay, so this quotation is written by William Blake. Okay, next paragraph. Something as tiny as grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. Something as tiny means very small, बहुत ही छोटा, as a grain of sand can spark off idea. Can spark off idea means can realize suddenly an idea or imagination of huge significance of the world. Significance means important. When we see a tiny grain of sand, or when we see a flower, that flower or that tiny grain of sand realizes us or imaginate us a huge significance. There is a huge importance to the world. अगर हम नेचर की तरफ देखेंगे, कोई भी या रेती का कण हो या फ्लावर हो, तो उसको देख के वो फ्लावर या
टाइनी स्पार्क ऑफ टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड हमें रियलाइज करता है नेचर का इंपॉर्टेंस. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as white flower and derive joy forever. So we can witness the experience of beauty of heaven. Okay, हम beauty of heaven को experience कर सकते हैं small white flower में and derive joy forever. Derive means to get. Okay, to get joy forever from nature. So now we will stop here and rest of the part we will learn in the next lecture. Thank you.